स्टार्ट करेंगे. This is H2M1. So rolling equation we have done with the rolling equation. Rolling equation हमने कर लिया था कि नहीं कर लिया था? We have completed the rolling part. रोलिंग पार्ट हमने कर लिया था. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है पहले, कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया था इन होमवर्क इन लास्ट लेक्चर? एनी क्वेश्चन दैट आई गेव फॉर द होमवर्क इन द लास्ट लेक्चर? ठीक है, रॉड टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है. फिर भी स्टिल एक वार्म अप क्वेश्चन है. यहाँ पे सॉल्व दिस क्वेश्चन, अपने आप करके बताओ. This is about this point. This rod is translating with the speed v naught and this is rotating about this point omega. This is L by 5 and this point is 4L by 5. What should be the velocity VA and VB? कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? What will be the VA and VB? your answer, क्या आंसर आ रहा है बताएं बेटा. your answer VA is coming. VA कितना आ रहा है? is it V naught plus omega L by 5, correct? Yes, sir. And what about VB? V naught minus omega into 4L by 5. सही है कि नहीं? सही है. Yes, sir. एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है इसमें? नो डाउट. चलिए नेक्स्ट इज रोलिंग डायनामिक्स. रोलिंग डायनामिक्स. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इन योर सिलेबस देयर इज ओनली प्योर रोलिंग. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्योर रोलिंग, so this condition will be there. VCM is equals to omega into my r and acceleration of center of mass is alpha into my r. So these conditions will be there. If there is any velocity, so this will be the relation between omega and velocity, and if there any acceleration, that will be the relation. Is V is velocity, omega is angular velocity, A is acceleration, alpha is angular acceleration. Clear? Is it clear? Or R is radius? R is radius. So that will be the relation. And whenever we talk about pure rolling, so that means static friction will be there. Kinetic friction नहीं लगेगा, because in pure rolling no slip is there, no slipping. No slipping condition we have to take, no slipping. Clear? Static friction will be there. स्टार्टिंग फ्रिक्शन है ना. तो जब भी हम ऐसी बात करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन लगेगा. कैसे सॉल्व करते हैं? हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे करेंगे? सपोज यू आर हैविंग अ डिस्क. एक डिस्क है, ठीक है. इसमें यू आर अप्लाइंग अ फोर्स F. Force. This disc is rolling. This disc is rolling over a rough surface, so that pure rolling condition will be there. You know why I'm taking rough surface? Because over the rough surface, there will be sufficient friction, which will provide the pure rolling. You know, sufficient. You can assume the direction of friction anywhere. है ना, इधर फॉरवर्ड और अच्छा ऊपर नीचे मत कर देना, है ना. एनीवेयर मीन्स दैट यू कैन टेक इट फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, बट बाय मिस्टेक इफ यू हैव assumed the incorrect direction, you will get a negative sign. That negative sign always shows you that whatever the direction you have taken, that need to be rotated by 180 degree, है ना. उसको 180 डिग्री घुमा दो, ठीक है. बताया था ना मैंने, whenever you get a negative sign, that means जो भी डायरेक्शन आपको माना है, चेंज रिवर्स द डायरेक्शन, है ना. बताया था कि नहीं बताया था? बोलो बेटा.
बताया था। So this will rotate with alpha and the system will go with ACM. Clear? Is it clear? कोई डाउट है इसमें? Any doubt? Any doubt? मेरी आवाज आ रही है? देखो, F into में R clockwise plus FR into में R clockwise is equals to ICM into में omega. Why ICM? Because this system is rotating about this axis ICM. Okay, so this will be a torque equation. क्या हो जाएगा? अच्छा, थर्ड इक्वेशन तो आपको पता ही है, दैट ACM is equals to अल्फा आर, है ना? तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप इसको इजिली यू कैन सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? हाँ सर। डिस्क है तो mr²/2। अच्छा, दैट विल नॉट बी ओमेगा, ये ओमेगा नहीं आएगा, दैट इज अल्फा, है ना? गलत लिख दिया है, ICM इंटू में अल्फा, अल्फा लिखो इसे, अल्फा, ठीक है? गलती से ओमेगा लिख गया था वो, दैट इज अल्फा, ठीक है? एंड ACM इज इक्वल्स टू अल्फा। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आएगा F माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू MACM। This is equation 1, and if you put this value, so you will get in second equation F plus FR is equals to MACM by 2। यहाँ पे वैल्यू डालोगे, you will get the value। समझा कि नहीं? Is it clear? क्लियर है? तो वो सेकंड वाला इक्वेशन कैसे आया? ये वैल्यू इसमें डाल दो, इसमें, और आर को उड़ा दो हर जगह से। आर अल्फा इज इक्वल्स टू एम, आर अल्फा इज इक्वल्स टू ए, एंड एलिमिनेट दिस आर, so you will get F plus FR is equals to MA by 2। Clear? हाँ सर। ठीक है, clear? Is it clear? Clear है? सबको clear है? यस सर। चलो, आज नोट कर सकते हो, आज नोट कर लेना, ठीक है? नोट कर लो। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना है। hollow sphere, M mass, R radius, M mass, R radius, rough enough to provide pure rolling, hollow sphere, hollow sphere, you are applying a force F over the top point, on the top point, हाँ यही ले लो, दिस इज F, सेंटर पे यू आर अप्लाइंग अनदर F, ठीक है? फ्रिक्शन यू कैन अज्यूम इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड, किधर मानना है, आगे या पीछे? इन विच डायरेक्शन? पीछे मानना, पीछे। ठीक है? फाइंड फाइंड फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकंड एक्सेलरेशन, थर्ड अल्फा। अब इसका वैल्यू निकालना है, पूरा का पूरा वैल्यू निकालना है, ठीक है? सॉल्व करो सोल्यूशन पे, जस्ट लुक एट द सोल्यूशन। फर्स्ट इज फोर्स बैलेंस, सो फोर्स विल बी F plus F minus FR is equals to mass into my acceleration, correct? Acceleration in the forward direction and alpha ऐसा, बताओ, is it correct? Any doubt? बोलो। F plus F minus FR is equals to MA, is it correct? मैच कर रहा है? हाँ सर। The second is torque equation, torque about center of mass, है ना? सेंटर ऑफ मास के बहुत टॉर्क लगाओ, कितना आएगा? इस F का, ये F का, F इंटू में R क्लॉकवाइज, देखो दिस इज R, अबाउट दिस विल बी क्लॉकवाइज,
है ना, and of this f, this will be 0, f into में 0, and of this friction, this is also clockwise, है ना, clockwise. So fr into में r clockwise is equals to ICM into में alpha, that is mr square 2 by 3 mr square into में alpha, and the third equation is ACM is equals to alpha r. So this equation will be क्या, f plus fr is equals to 2 by 3 MACM, और पहला क्या हो जाएगा 2f minus fr is equals to MACM. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है. तो इफ यू वांट टू ऐड देम, तो ACM कितना आएगा, व्हाट विल बी ACM? ACM is 9f by, एक मिनट, if you add them 3f 5 9f by 5, किसी का आ रहा है ये 9f by 5m ACM मैच कर रहा है, बोलो. हाँ सर. देन व्हाट्स योर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आ रहा है, फ्रिक्शन कितना आ रहा है, FR सर कितना, f by 9, f by f by 9 मैच कर रहा है. सर मेरा f by 5 आ रहा है. f by 5 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ सही है, सही है, इट्स f by 5, f by 5. And what about alpha? Alpha कितना आ रहा है, ACM by R, so it will be 9 f by 5 mr. This one. Clear? Is it clear? हाँ सर. ठीक है, तो बताओ कोई डाउट है इसमें, इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट विद दिस इक्वेशंस? किसी को भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क. कोई डाउट है, एनी डाउट? कोई डाउट है? नो डाउट. चलो इसे नोट कर लो. चलो अनदर क्वेश्चन. यस. ये आपको यार अपने आप करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन. योयो देखा है बचपन में, योयो जानते हो, योयो नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं. एक स्पूल है, इसमें आपका थ्रेड बंधा हुआ है, उसको आप बस रिलीज, वी जस्ट रिलीज दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है. दिस इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, m मास, r रेडियस, ठीक है. टेंशन विल बी T, ग्रेविटी इज G. इसमें फाइंड टेंशन T and acceleration and alpha. You have to find these values. G is acting downward. Disk है. चलो बताओ कितना आएगा. चलो डन. किसी का आंसर आया? पहली बात तो इन दिस सिस्टम आपको चेक करना पड़ेगा प्योर रोलिंग किस तरीके से दिखेगा. सो इफ यू रोटेट दिस सिस्टम, इट विल लुक लाइक अ सरफेस. जैसे सरफेस पे चलता है ना कोई भी चीज़, वैसा लगेगा, है ना. दिस अगेन दिस सिस्टम विल मूव विद 2v, दिस विल मूव विद v, दिस विल मूव विद 0, है ना. तो वही आपका रिलेशन आ जाएगा, दैट ACM इज इक्वल्स टू अल्फा. नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व ऐसे करेंगे, mg विल एक्ट डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा, अल्फा ऐसा, a ऐसा. तो फर्स्ट वन mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma. सेकेंड, अबाउट सेंटर ऑफ मास अप्लाई टॉर्क इक्वेशन, तो t इंटू में r इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2 अल्फा.
and this equation A is equals to अल्फा आर. बताओ आएगा कि नहीं आएगा आंसर? आएगा. हाँ सर. कितना आ रहा है? द वैल्यू ऑफ टी. इट्स द वैल्यू ऑफ टी. इज इट 2 mg by सर 3? मुझे Is it 2 mg by 3? सर आई जस्ट गॉट mg/3. mg by 3. एक बार सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है मेरा गलत हो. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2 हाँ mg by 3 इज करेक्ट. आंसर इज mg by 3. इट्स mg by 3. एंड व्हाट विल बी ACM? ACM कितना आएगा? Is it 2g by 3? या सर. And alpha is 2g by 3r. हाँ या ना? ठीक है, क्लियर? मतलब डिफिकल्ट लग रहा है क्या? क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है आपको? इज इट डिफिकल्ट? नहीं सर. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ एंटायर फिजिक्स. मतलब पूरे फिजिक्स में जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है चैप्टर, उसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. समझ रहे हो? लेकिन अभी डिफिकल्ट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर आपने इसके कोर तक गए हो कि हाँ ओनली फोर्स बैलेंस टॉर्क बैलेंस, फोर्स बैलेंस टॉर्क बैलेंस, तब ये आपको इजी लगेगा. समझे? वरना ये पूरे 2 साल की फिजिक्स में, 11th 12th की फिजिक्स में, अगर आप अब किसी भी बच्चे से पूछोगे आपको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगा था, तो वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्यों आपका सिलेबस नहीं हो पाया. उसका रीजन यही है. क्लियर है? सो नोट कर लें, नोट कर लो. नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन. देखिए इसे आप पूरा अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं. दिस इज द प्लैंक. यहां से वी जस्ट रिलीज द स्फेयर. स्फेयर को यहां से रिलीज किया है ना. दिस इज अ सॉलिड स्फेयर. सॉलिड स्फेयर से पूछा गया फाइंड फ्रिक्शन, acceleration, alpha and direction of friction. ये बताना है. Solid sphere, m mass, r radius, angle given is theta, g is acting downward. ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा. एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको फंसाएगा. म्यू विल बी प्रोवाइडेड. म्यू दिया रहेगा है ना कि द सरफेस इज हैविंग म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली द नॉर्मल रिएक्शन विल बी देयर, है ना. नॉर्मल लग रहा होगा. कितना लग रहा होगा? mg cos थीटा के बराबर लग रहा होगा. एंड विच वन इज स्लाइडिंग दिस स्फेयर? दिस mg sin थीटा. तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा. फ्रिक्शन विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर आप गलती से गलत डायरेक्शन लेते हो, स्टिल वो अपने आप सही हो जाएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है. लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे गलती हर बार यही करते हैं. मैंने जब बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां लग सकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम तक, तो वो 0 से लेके म्यू एन के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है. तो ये याद रखिएगा. बट दैट विल एक्ट एज पर रिक्वायरमेंट. तो इसमें बस आपको वही करना है. एक बार फोर्स बैलेंस कर दो, तो दिस साइड एक्सेलरेशन कुछ यू कैन अज्यूम ए, और अल्फा ऐसा है ना, अल्फा अल्फा अल्फा. तो क्या आएगा? mg sin theta minus friction is equals to ma. सेकेंड इज टॉर्क इक्वेशन. टॉर्क इक्वेशन में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 2/5 mr square alpha. And third equation is a is equals to alpha r. A is equals to alpha r. So यहाँ से when you put the value, यहाँ से when you put the value, तो कितना आता है?
यहाँ से एम जी साइन थीटा, मैं सीधे सॉल्व करते रहो यहीं पे वैल्यू डाल के, एफ आर प्लस 5/2 एफ आर, तो एफ आर इज कमिंग 2/7 एम जी साइन थीटा। क्लियर? 2/7 एम जी साइन थीटा। अब फ्रिक्शन आ गया, देन यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग, सब कुछ आ जाएगा, है ना, सब कुछ आ जाएगा। अल्फा विल बी, अल्फा कितना आएगा, इज इट 2g साइन थीटा, नहीं नहीं ये 2 कट जाएगा, 5g 5/7 g साइन थीटा बाय आर। मेहा सही है? हाँ सर। एंड a इज कमिंग 5/7 g साइन थीटा। बताओ ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, रोटेशन में थ्योरी तो आप पढ़ो अच्छे से, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फील, उसका फील होना बहुत जरूरी है, ठीक हो? अगर ये स्मूथ होता, अगर ये स्मूथ होता तो क्या ये रोटेशन में जाता? नहीं। अगर ये स्मूथ होता तो ये सीधे स्लाइड करता, देयर विल बी नो ओमेगा नो अल्फा, है ना, सीधे स्लाइड करता। सो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रोटेशन? विच फोर्स? इज इट एम जी साइन थीटा और इज इट फ्रिक्शन? कौन है जो इसको रोलिंग दे रहा है? अगर प्योर प्योर आपका ये होता स्मूथ तो क्या होता, सिर्फ स्लिप करता हुआ, ऐसे स्लिप करता हुआ चला जाता। लेकिन विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रोटेशन? इट्स फ्रिक्शन। कौन है? फ्रिक्शन है उसके रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ऐसे ही इफ यू पुश दिस स्फीयर अपवर्ड, अगर आगे भेजोगे तब भी कौन उसके रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एम जी साइन थीटा स्पीड बढ़ाएगा तो फ्रिक्शन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी प्रोपोर्शनलिटी में ओमेगा को बढ़ाए वो, ओमेगा को, है ना। अब यही चीज अगर ऊपर जाएगी, यही चीज अगर ऊपर जा रहा होगा तो एम जी साइन थीटा स्पीड घटाएगा तो फ्रिक्शन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी क्या, कि वो ओमेगा को घटाए, ठीक है, ओमेगा को घटाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फील होना बहुत जरूरी है, दैट फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रोटेशन, अदरवाइज वो सिर्फ स्लाइड करता हुआ चला जाता, ठीक है। तो क्या ये सबको समझ में सर आया? हमने लास्ट में क्या कहा था कि ओमेगा कौन घटा रहा है? अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है ना, स्पीड बढ़ रहा है ऐसा, हाँ सर। स्पीड बढ़ा कौन रहा है? एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन क्या करेगा यार, स्पीड बढ़ रहा है, ओमेगा भी बढ़ाना पड़ेगा उसी प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये रिलेशन भी तो मेंटेन रखना है ना, v इज इक्वल्स टू ओमेगा, है कि नहीं? v इज इक्वल्स टू ओमेगा भी हाँ तो मेंटेन सर। करना है ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन अगर ऐसे लगेगा तभी तो इस ओमेगा को बढ़ा पाएगा, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर? वही अगर स्फेयर हाँ ऊपर सर। आता, स्फेयर अगर ऊपर आता ऐसा, तो स्पीड घट रहा होता तो फ्रिक्शन कहाँ लगता भाई? अगर ये ऊपर आता स्पीड क्या होता, घट रहा होता। तो जो भी इसका ओमेगा है, ओमेगा उसको भी घटाना है तो फ्रिक्शन तब भी कहाँ लगता, ऊपर ही लगता, ताकि वो इस ओमेगा को रोक पाए। समझा कि नहीं? तो वेदर इट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, फ्रिक्शन दोनों केस में कहाँ जाएगा, फ्रिक्शन दोनों केस में कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो पैकेज में कहीं दिखेगा या इस टाइप का क्वेश्चन, कि इफ यू रिलीज अ स्फेयर तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, अगर उसको ऊपर फेंकेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा। तो इन बोथ केसेस द फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड। पहले अपवर्ड क्यों लग रहा है, यहाँ पे ओमेगा को बढ़ाने के लिए अपवर्ड लग रहा है, यहाँ पे अपवर्ड क्यों लगेगा, यहाँ पे ओमेगा को घटाने के लिए अपवर्ड लगेगा, ठीक है, क्लियर? नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, इसे नोट कर लो, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट इज IOR, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये एक टॉपिक होता है, टॉपिक क्या मतलब, ये वैसे मेडिकल में ज़्यादा पूछता नहीं, लेकिन एम्स लेवल में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज अ पॉइंट अबाउट विच
about this about this axis we can convert a rolling into में प्योर रोटेशन, मतलब रोलिंग को प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट आर द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? देखो, सपोज यू आर हैविंग अ रॉड एंड रॉड इज पाइवटेड अबाउट दिस पॉइंट, है ना, अबाउट दिस पॉइंट। So this hinge or this point is your IOR, सिंपल सा है, दिस इज योर IOR। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब है कि इफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड तो आप दो इक्वेशन बना सकते हो टॉर्क की। पहली तो बना सकते हो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगाओगे तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा ना एंड mg नीचे लग रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या बनेगा, n इंटू में दिस लेंथ इज L/2 का टॉर्क प्लस mg का टॉर्क विल बी 0 अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/12 इंटू में अल्फा। और दूसरा है IOR, दिस इज IOR जिसके अबाउट वो रोटेशन दिख रहा है, तो ये क्या बना सकते हो, mg इंटू में L/2 ml²/3 इंटू में अल्फा। तो ये दो इक्वेशन बन सकती है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट बनाना तो मैं आता था, बट इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई IOR तो उसके अबाउट आप ऐसे सीधे टॉर्क इक्वेशन बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, इफ यू टेक टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, n इंटू में L/2 क्लॉकवाइज और mg तो वहीं से पास हो रहा है तो 0 इज इक्वल टू अबाउट दिस। जब भी आप हम किसी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का यहाँ इसके अबाउट क्या होता है, दैट इज ml²/12 इंटू में अल्फा। व्हेन यू टेक एवरीथिंग अबाउट IOR, तो IOR पे क्या होगा, mg इंटू में L/2 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू ml²/3 इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/3 इंटू में अल्फा। तो दीज टू इक्वेशन यू शुड नो, ये तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, समझा कि नहीं? बोलो सर आपको भी एक्सप्लेन क्या है? देखो, इफ यू आर हैविंग एन IOR तो क्या होगा, यू कैन मेक टॉर्क इक्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एज वेल एज अबाउट दिस IOR। सो व्हेन यू मेक टॉर्क इक्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, सो दिस नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन दिस हिंज, है ना, acting through this hinge on the rod, so the torque of this normal reaction will be n into L/2 clockwise, and mg will be providing zero torque about this center of mass because this is passing through the same point, okay, that is equals to moment of inertia about center of Sir, mass into alpha। Yes, sir, can you repeat why mg will produce zero बेटा torque? because this is passing to the same point ना, तो जो f इंटू में r होता है उसमें r 0 हो गया, ठीक है, समझा? Yeah, sir. Yes. इन द सेम वे IOR, जब IOR के अबाउट लेंगे, IOR के अबाउट लेंगे तो क्या होगा, n इंटू में 0 विल बी देयर, है ना, क्लियर? अभी सही है, समझा? Yeah, sir. चलो, तो दिस इज IOR। IOR क्या होता है, अगर आप कभी वैसे तो आपने नहीं देखा होगा, कभी सर्कस तो आपके टाइम पे तो कोई गया नहीं होगा, है ना, किसी भी ऐसी सर्कस वाली जगह पे या जहाँ पे 24 स्टंट दिखाते हैं, तो इफ़ यू टेक अ व्हील, एक व्हील अगर चल रहा है, अगर ध्यान से देखो आप, कभी आप ऑब्जर्व घर पे भी कर सकते हो, ये व्हील ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है, मान लेते हैं दिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू, प्योर रोलिंग, यहाँ पे सर्फेस खत्म हो जाता है, एकदम एंड पे एक प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है, कमिंग विथ वेलोसिटी v। आपने सडनली क्या किया, टेकन अ रॉड और तुरंत एक रॉड है यहाँ पे ऐसे डाल दी इसके बीच में, ऐसे यहाँ पे ऐसे, तो जैसे ही रॉड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही रॉड के अंदर आ जाएगा ये, इट विल स्टार्ट रोलिंग और रोटेशन, क्या अप्लाई कर देगा ये, क्या शुरू कर देगा, मुझे लगता है शायद इसके और ये प्योर रोटेशन शुरू कर देगा, हाँ या ना, है कि नहीं?
भाई इसके बॉडी ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा, ऐसे ऐसे। हाँ या ना? शुरू कर देगा? हाँ सर। है कि नहीं? जैसे इसमें फंसेगा ऐसे आ रहा होगा, जैसे इस रॉड में फंसेगा तो ऐसे क्या कर देगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा। है कि नहीं? तो देखो क्या हो रहा है, यू आर ब्रिंगिंग रोलिंग मोशन टू रोटेशन। दिस इज द पावर ऑफ आई ओ आर। रोटेशन में आ जाएगा तो सीधे रोटेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। समझा कि नहीं? इज इट क्लियर? तो IOR आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आई ओ आर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हाँ, ये क्या था, व्हाट वाज दैट पॉइंट? ये क्या था? दिस वाज आई योर आई ओ आर। ये आई ओ आर था जिसके बाद रोटेशन हो रहा था। ठीक है, अब आई ओ आर अभी देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पीछे से कुछ कोरिलेट मत करना, कंफ्यूज हो गया, अब आगे जो पढ़ा रहे हो उसी से ही देखना। हाउ टू आइडेंटिफाई आई ओ आर। आई ओ आर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आई ओ आर कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। आई ओ आर आइडेंटिफिकेशन। पहली चीज तो याद रखना, आई ओ आर की खास बात ये होती है कि दैट विल बी एट रेस्ट, है ना, एट रेस्ट एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे आई ओ आर रेस्ट पे होना चाहिए जिस मोमेंट पे आप उसे देख रहे हो। तो केस वन अगर रॉड में पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? सपोज एक रॉड है, ये पॉइंट का वेलोसिटी is 2v, this point is having velocity v। अब बताओ, रॉड में इतना ही दिया हुआ है, कैसे करेंगे? सिंपल सा, कनेक्ट द हेड्स ऑफ these velocities। तो यहाँ पे दिस पॉइंट इज योर आई ओ आर। समझा कि नहीं? क्लियर? तो इसके बाद यू कैन अज्यूम दैट दिस रॉड इज रोटेटिंग विथ ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L1, दिस इज योर L2, ओमेगा इंटू में L2 will give you 2v and omega इंटू में L1 will give you v। सिंपल सा है। ठीक है, तो ये केस वन, दिस इज द पार्ट ऑफ केस वन, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब दूसरा केस टू में क्या होगा, आई आर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन केस टू? इसमें सपोज वेलोसिटी वेक्टर कुछ अलग अलग टाइप के हैं। दिस वन इज 5v मान लिया, दिस वन इज v। अब कैसे करेंगे? कनेक्ट द हेड्स, इनके हेड्स को कनेक्ट कर दो ऐसे, जहां पे भी मिलेंगे दैट विल बी योर आई आर। इसको भी एक्स्ट्रा यहाँ पे एंड से कनेक्ट कर दो। ठीक है, नाउ दिस विल बी योर आई ओ आर। अबाउट दिस पॉइंट द रॉड इज इन प्योर रोटेशन। ठीक है, इसको ले लिया, दिस इज L1, so v is equals to omega into my L1। now this one is L2, 5v is equals to omega L2। क्लियर? क्लियर? इस तरीके से यू कैन मेक अ सिस्टम इन अ प्योर रोटेशन। आप ये मानोगे कि ये रॉड पूरा का पूरा इसके ऊपर रोटेट कर रहा है। समझे? क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? हाँ सर। चलो इतना नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हो गया? डन बेटा? हाँ सर। चलो अब पढ़ेंगे, देखो पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आएगा कुछ और, है ना। मतलब ये होता है एक स्टूडेंट के साथ, यही सबसे इसका बदनसीब यही है कि क्लासरूम में पढ़ेंगे इजी इजी और आएगा डिफ़िकल्ट, लेकिन अपने नोट्स उठाएंगे तो हमारे केस में ऐसा नहीं रहेगा। मैंने जितने भी मैक्सिमम डिफ़िकल्ट केस हो सकते हैं वो सब लिए हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें पूछ देगा
this rod, this rod, इसमें this point is moving with the speed, this point is moving with the speed कितना, with VA and this is VB. अब बताओ कहाँ पे आई ओवर आएगा, एट विच पॉइंट, कैसे निकालेंगे भाई, बताओ। ये पढ़ा, आया कुछ और, अब बताओ कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, चलो आपका आइडिया आ रहा है कुछ, एनी आइडिया कि कहाँ पे आई ओवर लाई करेगा। आई ओवर यहाँ लाई करेगा, पता है कहाँ पे, इसको यहाँ से 90 डिग्री खींच दो ऐसा, इसको यहाँ से 90 डिग्री खींच दो ऐसा, जहाँ पे दैट विल इंटरसेक्ट, दैट इज योर आई ओवर, ये दिस इज योर आई ओवर। अबाउट दिस यू कैन अज्यूम दिस इज at this moment this is rotating with omega about this IOR, ठीक है। तो इसमें if this is LA, VA कितना हो जाएगा, ओमेगा LA, and if this is LB तो VB कितना हो जाएगा, ओमेगा L। क्लियर, इज इट क्लियर, समझा कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन शायद आपको दिख जाए, ऐसे ऐसे आएगा नहीं, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई कि IOR जो है, या इसको देख लो पहले आप लोग, इसे नोट कर लो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। इसे नोट कर, चलो अब देखो, in case of pure rolling where will your IOR lie, suppose you're having a disc moving over, why I'm taking the rough surface, क्यों लेता हूं मैं बार बार, कोई बताएगा, why I'm taking the rough surface, just to ensure that there will be pure rolling, है ना। अच्छा, ये मैंने बताया था, टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी हैविंग 2v वेलोसिटी, दिस सेंटर विल बी हैविंग v वेलोसिटी, तो ये वाला भी मैंने बताया था 0 है, और मैंने बताया था IOR आपका कहाँ पे आता है, IOR लाई एट रेस्ट, है ना। यहाँ पे IOR कहाँ पे आएगा, बताओ एट विच पॉइंट, कहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है, दिस इज योर IOR, क्या, दिस पॉइंट इज योर IOR, अबाउट दिस पॉइंट अगर आप इसे ओमेगा लेते हो तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा r and 2v is equals to omega into my 2r, हाँ या ना, इज इट करेक्ट, बोलो। हाँ सर। ठीक है, ये है, ठीक है। Sir, यस, sir, in this sphere, why do we take it 2v, v and 0? why we are taking The 2v, v and 0. 2v, because बेटा मैंने डिस्कस किया था ना, इन प्योर रोलिंग the lower most point will be having 0 velocity, the center will be having v and this will be having 2v, ये प्योर रोलिंग में बताया था ना मैंने। हाँ sir. वही, हाँ sir. Thank you sir. डन, क्लियर, आगे बढ़े। नाउ वी विल टेक दिस क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले किया था, अब देखो IOR से कितनी जल्दी से हो जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन ले लें, विच क्वेश्चन, दिस वन, किसको पूरा सॉल्व किया था, इसको पूरा सॉल्व किया था। सो वी विल टेक दिस क्वेश्चन, इसको हम फिर से लेते हैं, अब हम इसे IOR के साथ करेंगे।
कहाँ चला गया, गायब हो गया। ये हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व विथ आई ओ आर से सॉल्व करो फिर से। ये इक्वेशन तो सेम रहेंगी, सेंटर ऑफ मास की भी इक्वेशन सेम बनेगी, सब कुछ एवरीथिंग विल बी सेम, बट वन एक्स्ट्रा इक्वेशन यू कैन मेक नाउ, वन मोर एक्स्ट्रा इक्वेशन। बताओ क्या बनेगा। अब एक बार ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा अबाउट आई ओ आर। तो अबाउट आई ओ आर चीजें आसान बन जाती है, इसे करके बताओ। देखो क्या बनेगा, कैसे बनाएंगे। ये तो सही है, फोर्थ इक्वेशन में देयर विल बी नो चेंजेस, बट टॉर्क इक्वेशन, अच्छा थर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाई थी, तो फोर्थ हो जाएगी वो, दैट इज ACM इज इक्वल्स टू अल्फा, वो भी सेम रहेगा। बट नाउ यू कैन मेक टॉर्क इक्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा, वो तो बनाया था, दैट इज F इंटू में R क्लॉकवाइज, देन दिस F इंटू में 0, दिस F इंटू में 0 प्लस फ्रिक्शन इंटू में R क्लॉकवाइज is equals to hollow sphere is 2/3 mr square alpha. Simple, it's very simple. ठीक है। But when you make torque equation about IOR, which one will be your IOR? This will be your IOR ना, हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, तो इसके अबाउट कैसे करेंगे, दिस इज योर IOR, तो दिस F इंटू में 2R, because this is 2R, F इंटू में 2R क्लॉकवाइज, दिस F इंटू में R, इसके अबाउट ले रहे हैं क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन इंटू में 0। अब नाउ यू हैव टू टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, तो क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सही सही बताओ। क्या आएगा बताओ, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर, तो इसके अबाउट कितना होगा, अबाउट अप्लाई पैरेलल थ्योरम, 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। बेटा हर चीज का इस्तेमाल होता है, समझे। तो ये इक्वेशन और बन गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया दिस थर्ड इक्वेशन। So could you explain how we got the moment of inertia? बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट is 2/3 mr square. Apply parallel theorem, you will get the moment of inertia about this. Okay, समझा। क्योंकि जब भी whenever we take IOR we have to take moment of inertia about that axis, उसके अबाउट लेना भी पड़ेगा। तो ये है आपका IOR का इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, इस सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें IOR, इसमें भी IOR यहाँ पे होगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार IOR से करके आना। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे IOR क्या होगा, दिस विल बी योर IOR, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप IOR से करके आना, फिर से एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। सो वी आर कंप्लीटली डन विद द रोलिंग, है ना। रोटेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, हमने अब ये देख लेते हैं, हमने सेंटर ऑफ मास अच्छे से पूरा कर लिया है। ठीक है, पूरा अच्छे से हो गया था। टॉर्क हो चुका है AMC, टॉर्क, टॉपलिंग हो चुका है, टॉपलिंग भी करा दिया था, एंड रोलिंग इक्वेशन ये भी हमारा हो चुका है। नाउ फॉर ग्रेविटेशन आई विल टेक एन एक्स्ट्रा लेक्चर में लगाऊंगा नेक्स्ट वीक इवनिंग में आफ्टर योर AITS के बाद। ठीक है, तो आज थ्योरी यही रखेंगे।